back to learning spoken English. Guys, on 15th August we have a series of lectures. On 15th August जो है ये a series of lectures हम इसको दे रहे हैं, a series of lectures. इस लेक्चर्स में सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं. तो ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास है. तो वी गेट सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट टुडे वी हैव लेक्चर्स ऑफ so many prime ministers of India. That's very new and that's very encouraging to know what our Prime Minister used to think on that 15th August 1947. Each Prime Minister of India that we had used to go to Red Fort on this day and deliver lecture, say nearly 1 hour lecture. So we have just got what the differences make our Prime Minister and how we it went from mind to mind. So just have a glimpse. So पूरे lectures तो I cannot count, but glimpses we can see. Comes to 1947. 1947 at the midnight, you know that Pandit Jawaharlal Nehru gave a historical speech, and that tryst with destiny that India got freedom. And at the stroke of midnight hours when the world sleep, India will awake to life and freedom. So that was a historical speech by Pandit Jawaharlal Nehru, and Pandit Jawaharlal Nehru was very happy to announce, and not only Pandit Jawaharlal Nehru, but the entire country was very happy because it was the first time that we are going to get freedom in real sense and make India as we make India of our dreams. So we just I had discussed several things in other lectures also about Pandit Nehru. We come to Pandit Nehru after, then we come to Srimati Indira Gandhi. Indira Gandhi was a very powerful lady. For 17 years she ruled the country, and the strongest lady that we had ever seen in politics was Srimati Indira Gandhi. And in Indira Gandhi, emphasis was given to New India. Indira Gandhi also wanted, like Pandit Jawaharlal Nehru, to create a new India. India would be different from the time of Pandit Jawaharlal Nehru. So New India, and then see, Indira Gandhi realized that there is inequality among the people. Inequality means equal distribution is not there. Money is sent and then equal distribution is not made. Somewhere it is lost, it is not reaching the people. So equal distribution should be there and equitable. Every citizen of India should get equal chance, equal opportunity, and equal what we call facilities or help, support. So in that case, Indira Gandhi emphasized on equitable. Equitable means समानता. समानता तो ऐसे है, in constitution there is a equality, but here equitable means that can be distributed equally. आपके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, करीब सबके बराबर ही ज़मीन हो. तो इसमें इंदिरा गांधी ने इस चीज़ पर जोर दिया कि इक्विटेबल चीज़ होना चाहिए. इक्वलिटी तो है ही है, सब लोग इक्वल हैं, सब लोग ये सारी, बट दे हैव नॉट इक्वल प्रॉपर्टी. तो इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी देयर शुड बी इक्विटेबिलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए, और इंदिरा गांधी ऑल्सो गिव एम्फेसिस ऑन प्रॉस्पेरस
prosperous India, that India should be prosperous. And the fact is that in the time of Pandit Nehru suffered a lot because he was the first Prime Minister of India and had a war also. China attacked India and then we had no what we call arms and ammunition. हमारी military strategy भी नहीं थी. We are weak some many places, but that the 62 or 1962 war given us enough strength and we learned a lot from that war. So after that Indira Gandhi came, although 1 year see Lal Bahadur Shastri also, but we are not taking his period is very short. Coming to Srimati Indira Gandhi, we say she emphasized New India and equitable. Equitable means all people of India have some equal distribution. ऐसा नहीं किसी के पास बहुत ज़मीन है और किसी के पास रहने के लिए कुछ नहीं हो. तो इंदिरा गांधी was against that. इंदिरा गांधी wanted that equality should be there. और इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ें की. ये पीढ़ी पर्स बंद करना, ये राजा महाराजाओं, she knew that problem would arise, and in her time the problem was there because there was rajas and maharajas, lot of were there, jamidars were there. So Indira Gandhi broke the ribs of all raja maharaja and their palace became hotels. She turned their palaces into hotel. So Indira Gandhi was a very, very powerful lady, and in her time this equitable and prosperity of India was amazing. Right. And then came what we call Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was gentleman. He had and it was Rajiv Gandhi who was the highest number of members in parliament supported. That जिसको बोलते हैं 400 के पार, तो 400 के पार मेंबर कभी भी नहीं हुए हिंदुस्तान में, किसी की सरकार ने नहीं लाया. It was Rajiv Gandhi who went beyond 400, or people loved him very much. That's why he got more than 400 Congress seats in parliament. So Rajiv Gandhi was a gentleman, very good gentleman. उन्होंने भी कहा कि हम जो इंडिया बनाएंगे स्ट्रॉन्ग होगा और रिलायंट. आप उसको कोई भी हिंदुस्तान पर भरोसा कर सकता था. तो रिलायंस चीज़ को ये राजीव गांधी ने दिया कि हम भरोसेमंद आदमी बने, हम भरोसेमंद देश बने, मुल्क बने, हम पर सब कम से कम विश्वास करें कि दिस इज़ इंडिया, एंड देन वी विल बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री. हम तब अपने देश पर जो है घमंड कर सकते हैं. अनलेस पीपल आर द पीपल ऑफ वर्ल्ड, they do not rely us, we cannot be great people. So, and we cannot be proud also. So, his motive was this, to be proud India and strong India and reliant India. तीन चीज़ पर ये राजीव गांधी ने जोड़ दिया था. ये राजीव गांधी का है, राजीव गांधी, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू. और इसके बाद एक और कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर थे, पीवी नरसिम्हा राव. पीवी नरसिम्हा राव के 1992 इन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और इंडिया हैज़ टू एक्सेस द रिसोर्सेस, और उस रिसोर्सेस को यूज़ करे, सेल करे. और इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कैन ब्रिंग आउट and show to the world and
एंड गेट बिजनेस, कॉमर्स में भी उसको ला सकते हैं। तो ये जो है इनका कहना था कि हमारे टैलेंट के रिसोर्सेज हैं, फिर बहुत टैलेंट्स, और इसी समय जो है वो पेटेंट वगैरह का ज़्यादा चल गया था। तो नरसिम्हा राव जो है वो कहते थे कि हमारा देश जो है रिसोर्सेस में रिच है, वो मिनरल्स है, क्या है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें ये पीवी नरसिम्हा राव ने बताया। और फिर इसके बाद जो है नरसिम्हा राव के बाद जो मनमोहन सिंह आए, पीवी नरसिम्हा राव के बाद नरसिम्हा राव एंड देन अटल बिहारी वाजपेयी। यूनाइटेड एंड प्रॉस्पेरस कि हमारा देश जो है ज़्यादा धनी हो और संगठित रहे, ये अटल बिहारी वाजपेयी यह कहा करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो है वो आए, क्या नाम है इनका, मनमोहन सिंह was the prime minister for 2 times, 10 years he was prime minister, more than that। और इसने कहा, ये मनमोहन सिंह ने कहा कि हमको मोर इंक्लूसिव बनना चाहिए, हमारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं और प्रोग्राम्स जो है वो ऐसे बनने चाहिए कि वो सबको समेट के रखे। इसके पहले जो प्रोग्राम्स होते थे वो किसी क्षेत्र के लिए होते थे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होते थे। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएं और जो सबको लेकर चले, इस तरह के प्रोग्राम को टच करें जिसमें सबका भला हो, मतलब सब लोग उसमें आ जाए, आदमी औरत, छोटे बड़े, ऊंचे जात नीचे जात, सबको एक लेने के लिए। दिस वॉज ये कितना कहना था कि ये है मनमोहन सिंह वॉज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही वॉज ए स्कॉलर। और ये इनका कहना भी बहुत सही था कि ही वांटेड टू इंक्लूड so many programs and in one program so many people that should be get advantage। और इनके समय का जो बजट था अच्छा बजट हुआ करता था। और इसके बाद आप नरेंद्र मोदी में लोग एक ही चीज़ पाते हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है करप्शन फ्री जो है इंडिया देखना चाहते हैं। लॉट ऑफ करप्शन was there in India, in bureaucracy, in politics, in everywhere corruption। So I want to root out corruption from the polity, from the society, from the bureaucracy। तो वो ये करप्शन फ्री बनाना चाहते थे देश को, करप्शन फ्री बना अभी भी है। आपके नरेंद्र मोदी साहब वो चाहते हैं कि हम देश को करप्शन फ्री बनाएं, लेकिन अब क्या है, पब्लिक विल जज whether it is corrupt free country or not, but the thing is that his motive was to make India make India free from corruption। ये दूसरी एजुकेशन पर लोगों ने नहीं बोलना चाहा, एजुकेशन पर ये नेता लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए नहीं बोलते कि वो एजुकेशन नहीं चाहते, एजुकेशन को फॉर्मल बना दिया। हाँ, अब हम आपको एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं उनको, नेहरू जी के समय में एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज इंडिया जो है ऐसे ही था। तो बुढ़े को पढ़ाया जाता था, उसको करते थे एडल्ट एजुकेशन, और फिर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने को, मतलब लिटरेसी के लिए, लिटरेट बनाने के लिए नेहरू जी ने काम किया। लिटरेट साक्षर बने, और उसमें कम से कम पढ़ना लिखना जान जाए, सिग्नेचर करना जाए, अंगूठा न लगाए। इसके लिए इंदिरा गांधी ने रियलाइज़ किया
कि एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये जो है ये डेमोक्रेटिक फोर्स है, ये नाम दिया है, एजुकेशन इज डेमोक्रेटिक फोर्स। इससे डेमोक्रेसी जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक ढंग से काम कर सकेंगे। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा सोचा था एजुकेशन के बारे में। और राजीव गांधी ने कहा कि ये इक्वलाइजिंग फोर्स है। इक्वलाइजिंग का फोर्स का मतलब होता है कि अगर शिक्षा सब में आ जाए तो हमारा देश जो है बराबरी तभी आएगा, पैसे से नहीं बराबरी आता या लैंड से, इससे नहीं आता। जब सब में शिक्षा आएगी तो बराबरी अपने आप आएगा। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने ही कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कंप्यूटर का एक लंबा इतिहास है। आज कंप्यूटर के युग में हम उस समय थे, अब भी हैं, और आज तो जहाँ जा रहे हैं वो आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लोग रिजीम में हैं और यहाँ से बड़ा जंप लगेगा और यहाँ से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये सारे चेंज पूरे वर्ल्ड में होंगे और आप देखिएगा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हॉपकिंस ने कहा था, हॉपकिंस जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि जो संसार का अंत होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी वजह से होगा, जबकि रोबोट काम करना शुरू कर देंगे और सारा काम आदमी अपने न करके मशीन से करवाएगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होगा। तब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शायद हम लोग तो नहीं, लेकिन बच्चे सब देख सकेंगे कि किस तरह का परिवर्तन होगा। और इसका ज़्यादा प्रयोग का मतलब होता है पूरा संसार जो है इट इज़ ए थ्रेट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि ये शिक्षा के मामले में उन्होंने क्या बोला कि पी.वी. नरसिम्हा राव ही हैड knowledge of so many languages, say 15-16 languages he could speak. All they were there, but no one took interest in education. इस पर एक अलग से लेक्चर हो सकता था कि क्यों लोग जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस एजुकेशन पर नहीं दिया, इसका क्या वजह हो सकता है। तो इस पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि चूँकि 15 अगस्त है तो हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने के क्या विचार थे, फिर इंदिरा गांधी के विचार, फिर इसके बाद राजीव गांधी आए, फिर पर पी.वी. नरसिम्हा राव, और फिर जो है ये अटल जी आए, फिर जो है मनमोहन सिंह, और फिर जो है मोदी जी हैं। इनको करप्शन फ्री कंट्री चाहिए और इनको भी एजुकेशन से कुछ लगाव ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो लोग एजुकेशन को क्यों नहीं लाना चाहते, क्योंकि जितने ही पॉलिटिशियंस हैं इनके सारे स्कूल्स हैं, ये सब हैं, बट इवन देन दे डोंट टॉक अबाउट एजुकेशन। एंड वो जैसा एजुकेशन हिंदुस्तान में होना चाहिए अभी राइट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर। तो इस पर हम अलग से बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्पीशीज ऑफ आइडियाज़ लेक्चर, स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑन 15 अगस्त 1947। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।